Book Flamingo. Come to the poetry section. First poem, My Mother at 66. Poetry section. First poem, My Mother at 66. Written by Kamala Das. Be careful. Keep in your mind the name of the poem and the poet. Objective type question may be there. So you will get lines from the poem and it will be asked name the poem and the poet. Here the first one, My Mother at 66. Written by Kamala Das. See the spelling Kamala. Normally we write Kamla, but it is not like that. Be careful. Don't write the Rajasthani spelling, but write the poetical spelling. Kamala Das. After the introduction of the poet, you will get a column before you read. Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? इतना उम्र तो है नहीं सोचने के लिए, इसलिए हमें उसके बारे में कोई ज़्यादा सोचना भी नहीं है. About the poet introduction section, Kamala Das was born in Malabar, Kerala in 1934. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutty. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust in 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot, and other stories in 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idioms. My Mother at 66 is an example. खुद की मम्मी के बारे में कुछ लिखा है इस पोएम में. So let us start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me doze, open-mouthed. Her face ashen like that of a corpse, and realized with the pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security checkup, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile
Kamala Das. If you give attention, we can see the poem started and there is no full stop at all. In the last part also, we can see ... That means the poem has no end. It goes and goes and goes. So try to understand what is written in the poem. Normally it is nothing. The poetess was going to Cochin airport. Her mother was with her. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. She was going to Cochin airport from her parents' home. It was on a Friday morning. I saw my mother beside me. My mother was with me and my mother was dozing. Dozing means sleeping. Open mouthed. Muh khuli raha. Her face ashen like that of a corpse. कभी कभी हम सोते समय सफ़र में या घर पे ऑटोमेटिकली हमें पता नहीं रहता है कि देखने वालों को पता रहता है हमारा मुंह खुले रहता है. Her face ashen like that of a corpse. चेहरे पे देखो राख जैसा कलरलेस दिखाई दिया. उदासीनता. Like of a corpse. Corpse यानी डेड बॉडी. कोई पास में से डेड बॉडी देखा है तो पता पड़ेगा, तो चेहरा देखा है तो बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन का कोई चमक नहीं दिखाई देगा. इट विल बी लाइक ऐश. ऐश जानते होंगे सब. हाँ, आजकल ऐश देखना बड़ा मुश्किल है. राख पुराना टाइम में बर्तन वगैरह मांजते थे उससे, लेकिन आजकल विम का ज़माना है और इसलिए चूल्हा जलते नहीं. इसलिए ऐश क्या होता है, कई लोग देखा भी नहीं होगा, सुना तो ज़रूर होगा. देखा नहीं तो देखने का कोशिश करें. कुछ चीज़ें उठा के जलाएं, जलने के बाद जो निकल आता है वही है कौन सा, राख. जो ओरिजिनल राख होता है वो ग्रे कलर का होता है. अगर हम कागज़ कपड़े वगैरह जला के देखें तो वो ऐश ब्लैक कलर का होता है. तो ओरिजिनल जो लकड़ी वगैरह जलने के बाद जो लास्ट में जो बच जाता है, दैट इज़ जस्ट लाइक ग्रे इन कलर. दैट इज़ कॉल्ड द ओरिजिनल ऐश. अब उसके चेहरे में देखो. किसके चेहरे में? कमला दास की मम्मी के चेहरे में. इट लुक लाइक एक्शन just like a corpse, and realized with the pain that she thought away. चेहरा देके वो उदास हो गया, दिल में दुख होने लगा. चेहरा just like a corpse means it gives the idea that maybe in the nearest days she is going to die. कुछ लोगों को देख के हम अनुमान लगा सकता है कि वो
किस स्थिति में है, नियरेस्ट डे में मरने वाला है या अभी मरने वाला है, कुछ तो पता पड़ जाता है। तो कमला दास को पता पड़ गया उसकी मम्मी का स्थिति देखे तो शी इज़ गोइंग टू डाई इन ए नियरेस्ट डे। आई लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। उसको देखे इससे लगा शी इज़ गोइंग टू डाई इन ए नियरेस्ट डे। सो इमीडिएटली शी चेंजेस हर माइंड टू अदर वे, क्योंकि कभी कभी इस तरह की बातें हमारा दिमाग में आ गया तो हम परेशान हो जाते, और इसलिए उससे बचने का एक ही तरीका है कि डाइवर्ट आवर माइंड टू अदर वे। तो उसने तुरंत, क्योंकि उसका सफ़र में कोई भी बाधा दोबारा आ सकता है, और इसलिए उसने तुरंत क्या किया, मुझे अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं, अगर ऐसा सोचा है तो एंड फ्रॉम कोचिन एयरपोर्ट आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो इसलिए वो तुरंत शी पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उसका सोच को बदलने के लिए वो तुरंत गाड़ी से बाहर देखा तो शी सीज ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग। अगर कोई सफ़र किया होता तो हम गाड़ी में बैठ के बाहर की ओर देखा है तो हमें ऐसा लगता है पेड़ पूरा घूमते 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 आ जाते। किसी किसी को तो लगता नहीं होगा, अगर सामने देखे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत दूर देखे हमारा जो पॉइंट उसी में टिका के रखें तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट द ट्रीज आर स्पिनिंग, houses are spinning, whatever we see we will feel that they are sprinting, they are running। हम आगे की तरफ जाते हैं, वो स्पिनिंग करके पीछे की तरफ जाते हैं। इस तरह का कभी महसूस नहीं हुआ तो एक ही तरीका है, गाड़ी में सफ़र करके देख लो, अपने आप पता पड़ेगा, टेंशन दूर। तो शी वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट, her mother was with her, she watched her mother, she was dozing, sleeping, her mouth was opened, her face was just like ashen and like a dead body, and she realized that what she realized? She realized that she is going to die in a nearest day, and so she could not control the pain, so he turned her thought away. She diverted her thinking, and she to divert her thinking, what did she do? She looked out of the car. What she has seen? She has seen the trees sprinting। घूमता हुआ पेड़ को देखे उसका सोच बिल्कुल उसकी तरफ गए, मम्मी की तरफ से हट गया टोटली। इफ़ यू फील समथिंग लाइक दैट, एनी टेंशन, डिप्रेशन, वाट एवर इट मे बी, यू डाइवर्ट योर थिंकिंग, यू विल बी ऑल राइट विद इन ए मिनट। एंड द अदर थिंग, द merry children spilling out of their homes। स्पिलिंग मीन्स गोइंग आउट। कैसे? बच्चे बाहर निकलते हैं ऐसे मस्ती करके, ये थोड़ी है कि धीरे 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 उदास होके बाहर निकल रहे, ऐसे नहीं है। इसलिए उधर कौन सा शब्द यूज़ किया? मैरी चिल्ड्रन, मस्त बच्चे। क्या किया? मस्ती करने के लिए क्या कर रहे? गोइंग आउट, बाहर निकल रहे। हम भी चाहते होंगे कि बस बाहर निकले, लेकिन घर वाला इतना परमिशन नहीं देते, पर्टिकुलरली nowadays, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। वैसे आजकल के बच्चे बाहर निकलने के लिए चाहते ही नहीं हैं। दे हैव नो टाइम टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड बी मैरी। एक समय था
बच्चों को घर से बाहर जाके मस्ती करने का मौका मिलता था. Boys, they are getting the situation, they are getting the chance, but the girls are not totally free. कुछ पाबंदियाँ होती है तो उसको मानना भी पड़ता है, और इसलिए वो घर पे ही रहता है अधिक से अधिक टाइम. और मस्त बच्चे बाहर निकल रहे फ्रॉम देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप. इसका मतलब शी रीच्ड द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट में पहुंच गया, वहाँ चेकिंग होता है. कोई चेकिंग इसलिए होता है, कोई ऐसी चीज़ें लेके सफ़र करना अलाउ नहीं है प्लेन में, इसलिए चेकिंग होता है. लोहे वाला आइटम, और जैसे जो पता है ना, कुछ लोग कई चीज़ें छुपा के ले जाते हैं, वो सब कुछ चेकिंग का कंट्रोल में आता है तो पकड़ा जाएगा. और इसलिए ऐसा कोई लेके नहीं घुसे, जैसे सोना, बंदूक या ऐसा कोई एक्सप्लोसिव आइटम्स इत्यादि चीज़ें लेके कोई सफ़र करना चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. उसको एयरपोर्ट में ही रोक लिया जाता है चेकिंग के द्वारा. अगर कोई ऐसी चीज़ मिला जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट ऐसे चीज़ लेके जाए तो वहाँ अरेस्ट भी कर दिया जाता. इसलिए सिक्योरिटी चेकअप होता है. पहले वो चेकिंग करेगा, जो एरोप्लेन में सफ़र किया है उसको पता है कैसे कैसे चेकिंग होती है. और पहला चेकिंग यही होता है कि अब मैं अंदर एंट्री करने का परमिशन है या नहीं. उसके लिए वो टिकट चेक करता है, कौन सी प्लेन है, कितने बजे जाते हैं, टिकट है या नहीं, ये पहले चेकिंग करता है. अगर हम जल्दी पहुंच गए तो भी वो उस टाइम सिक्योरिटी वाला अंदर जाने नहीं देते. आपका प्लेन का टाइम बहुत आगे है और इसलिए अभी आपको अंदर जाने का परमिशन नहीं मिलेगा. लोकल ट्रेन के, डोमेस्टिक ट्रेन के प्लेन के आधार पर आपको 2 घंटे पहले एरोड्रम पहुंचना होता है. और लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे तो सही, कोरोना से बच जाए तो अनुभव करके देखना इज़ द बेस्ट थिंग टू लर्न समथिंग. सो इस तरह से वो एयरपोर्ट में पहुंच के सिक्योरिटी चेकिंग ओवर हो गई. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी check means checkup, standing a few yards away, I looked again at her. जैसे रेलवे स्टेशन में अंदर जाने का परमिशन है, ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म में आते हैं वहाँ तक जाने का परमिशन है, लेकिन एयरपोर्ट में ऐसा नहीं है, हमें बाहर ही रुकना होता है. अंदर होने के बाद बाहर एक नज़र लगा के देख सकता है, उसके बाद हमें और अंदर ले जाता है, वहाँ पर हमें बिठा दिया जाता है 2 घंटे तक. नॉर्मल केस बता रहा हूँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात और टाइमिंग और पहुँचने का टाइम सब कुछ अलग अलग है. यहाँ पर देखा, चेकअप होने के बाद उसकी मम्मी बाहर, वो अंदर, लेकिन आपस में अभी थोड़ा देख सकता है. और आई लुकड अगेन एट हर, मैं फिर से उसको देखा, वो फिर से उसको लेका. मीन्स वो तो हम सभी ऐसा है, किसी को सी ऑफ करने जाते हैं तो जितना तक हो सके लास्ट टाइम तक अपना आप देखे, हाथ वगैरह वेविंग करके जाने का सिस्टम होता है. और ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखा नहीं है तो बस किसी को सी ऑफ करने के लिए चल जाना या फिर खुद सफ़र करने जाना, तब पता पड़ेगा. आई लुक्ड अगेन एट हर, वैन, मैंने देखा. वैन मीन्स कलरलेस,
उदास, टेंशन. पेल as a late winter moon. उसका चेहरा देखा बिल्कुल पेल था, हम पढ़ते हैं ना पीला पड़ जाता है. as a late winter's moon. लेट विंटर मून मीन्स उस टाइम जो चंद्रमा है बिल्कुल हल्की रोशनी देती. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक है ना पेन, दर्द. उसको देख के वही चिंता मुझे वापस आ गई. क्या चिंता था? जो गाड़ी में बैठ के देखा क्या था? हाँ, हर फेस वॉज जस्ट लाइक अ कॉर्प्स. उसके चेहरा डेड बॉडी जैसा है. वही चिंता अभी आया. बीच में क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी. एंड शी लुक्ड आउट ऑफ द कार. वहाँ का जो दृश्य देखे उसका मन टोटली चेंज हो गया था. लेकिन अभी एक और बार उसको देखा तो ऐसा लगा टोटली वैन, कलरलेस, पेल as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. पुराना जो विचार वापस आ गए, दुख, दर्द. माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन के फियर भी यही था. लोग एजड होके क्या हो जाता है? मर जाते. वो विचार मेरा जीवन में वापस आ गए. मम्मी को लेके, मम्मी शायद जल्दी ख़त्म होने वाला है. एज कितने हो गए? 66. वैसे 66 कोई ख़ास एज नहीं है मरने के लिए, लेकिन कुछ लोगों में तो ऐसा होता है जो कमज़ोर पड़ता है, तो ऐसा ही है. और यहाँ पर उसको कन्फर्म था, एक पोएटस होने की वजह से उसको मालूम है कि किसी की स्थिति क्या हो सकती है, कि ऐसे कई समय से वो गुजर गई. उसके अनुभव से उसको पता रहता है कि बस मम्मी का भी डेथ नियरेस्ट डे में होने वाला है. एंड माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा. अम्मा मदर को कहते हैं साउथ इंडिया में, या तो अम्मा ग्रैंड मदर को कहते हैं आई थिंक. अम्मा मीन्स मदर, जिसे मुस्लिम्स कहते हैं अम्मी. द सेम मीनिंग इज हियर. बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा. ये जानते हुए भी उसने मम्मी को बताया, मिले मम्मी, जल्दी मिलेंगे अपन. वो क्यों ऐसा कहा? अंदर ही अंदर उनको मालूम है वो वापस नहीं मिल सकते, क्योंकि वो मरने वाली है. लेकिन वो क्यों ऐसा कहा जल्दी हमें? तो मम्मी को कोई टेंशन देना नहीं चाहते. मम्मी से कैसे बोलें, मम्मी अभी हम मिल नहीं सकते हैं और कुछ दिनों में आप मरने वाली है और मरने से पहले हम मिल ही नहीं सकते, ऐसा कह सकता है क्या? इसलिए तसल्ली के लिए, खुद की तसल्ली के लिए, मम्मी की तसल्ली के लिए वो बोला सी यू अम्मा. ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और उसके बाद वो मुस्कुराती रही. बाकी ख़त्म तो किया ही नहीं और यूं ही चलते रही. वो क्यों मुस्कुराते रही? क्योंकि मम्मी टेंशन में नहीं आए. और उसकी जो मुस्कुराने के मतलब उसके अंदर ही अंदर दर्द है, लेकिन वो शो नहीं करना चाहते. अगर वो उदास चेहरा दिखाई दिया तो मम्मी पूछ सकती है व्हाट हैपेंड बेटा, लेकिन वो नहीं चाहती कि ऐसा कोई बात टेंशन में ना डालें. और इसलिए उसने बोला मम्मी मिलेंगे हम जल्दी. और उसके बाद मुस्कुराते रहा. उसके बाद मम्मी अपने रास्ते में और ख़ुद अपने रास्ते के लिए और आगे बढ़ा. और इस तरह का एक पोएम है माई मदर एट 66. When simply we see the poem, there is nothing. But you think deeply about the poem, you will get a lot of ideas from the poem.
the same situation may come in our life also. So compare the poem with our own life, a situation will come like that. So what you have to think and how to control the situation and how to control your pain, control your ideas, and we don't like to make others getting feel or pain. All the things we can learn from this poem. Think about the poem, read the poem. I have told you that the poem is in once. We cannot say in full sentence, but from the top, we cannot say which line is this. There is no connection with the lines also. And if we see the line, there is no rhyming pattern. And if a poem has no rhyming pattern, it is called blank verse. Blank verse is that a poem which has no rhyming pattern. That is called blank verse. BLANK VERSE. This is called blank verse. The poem that has no rhyming pattern. इसमें लाइन ही बता नहीं पा रहे कौन सा लाइन है, फिर भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ पोएम है. पोएम इनकम्प्लीट है क्योंकि उसके सफ़र में उसको पता नहीं मम्मी रास्ते में मरे, बाद में मरे, उससे मिलने से पहले मरे ना मरे, उसका कोई कंक्लूजन नहीं है. इसलिए पोएम में स्माइल करके डॉट दिया. दैट हैज़ नो एंड. अभी ये दोनों अपना सफ़र कर रहे. अब सफ़र में क्या नतीजा निकलेगा किसी को भी पता नहीं पड़े. अभी क्वेश्चन आ सकता है कि गाड़ी कौन चला रहे थे. कुछ लोग कहते हैं कमला दास खुद चला रहे थे, लेकिन मैं उसके साथ नहीं दे रहा. अगर खुद चला रहे तो पास में बैठने वाले मम्मी के चेहरे में मुंह में दे के अगर ड्राइव करें तो क्या होता. हाँ, गाड़ी कहीं जाके चढ़ सकता है. दूसरी बात, अगर गाड़ी चला रहे तो बाहर दे के इस तरह का सीनरी का एंजॉयमेंट नहीं कर सकता है. इसका मतलब वो गाड़ी नहीं चला रही. फिर ये पूछेंगे मम्मी चला रही थी क्या, वो भी नहीं. क्यों? सिंपल आंसर, शी वॉज डोजिंग. और दूसरी बात, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है. अब ये नहीं बहस करना कि ड्राइवर है, घर का कोई है, भाई हो या कोई हो तो कुछ भी हो, बस उसके बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं क्योंकि ड्राइवर को कभी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, उसका हाईलाइट नहीं करता है, और इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है. या सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड द कार वॉज ड्राइविंग बाय द ड्राइवर. क्वेश्चन आया पहले भी, who was driving the car. If your answer yes, give reason. If your answer no, give reason. इस तरह के क्वेश्चंस आता है. छोटी छोटी चीज़ें जो हम सोच ही नहीं सकते, इसे क्वेश्चंस आ जाता. सो बी केयरफुल, रीड द पोएम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो डीपली, learn the name of the poem and the poet by heart. Remember the spelling. Kamala. We say Kamla. It is not Kamla but Kamala. When we write in Hindi also we write full L or full Ma. So we cannot say Kamal, Kamala. Okay, let us stop here.